If you want to ask anything, you can ask hurriedly. जल्दी से पूछ लेना है जो कुछ पूछना हो. Okay, so let us start this. Jatin and Yashdeep, they are coming now. So first of all, let us take the question x plus y is equal to -7. X plus y is equal to -7. So this is very simple. As I have told you कि सबसे पहले तो बेटा सबसे पहले एक बार x 0 रख लिया करो, एक बार y 0 रख लिया करो. This is very simple. This was also wrong. अगर मैं x 0 रखता हूँ और x is equal to 0, okay, we get x की जगह 0 रखता हूँ यहाँ पे. See, ये x है, x की जगह 0 रख दिया, तो y is equal to -7 आ गया ना, equal to y is equal to -7. 0 plus y means y. इसमें क्या इशू है? अब दूसरी बार y को 0 रख लो, ठीक है. for y is equal to 0 we get, ये लिखने का तरीका भी मेरी तरह होना चाहिए आपका. इज इक्वल टू से सारे लाइन में आने चाहिए x, और ये y की जगह पे मैंने रख दिया 0, राइट, एंड दिस इज इक्वल टू -7. अब x plus 0 means x plus 0 means x, so this is equal to -7. तो ये लिखने पे आ गया -7. राइट ना. अब आप कोई भी और एक वैल्यू रख सकते हैं x की, y की, जो भी चाहिए. सपोज मैंने y की वैल्यू रख दी 2 फॉर y इज इक्वल टू मैंने y की वैल्यू रख दी है, सपोज करो फॉर y इज इक्वल टू 4, ठीक है. वी गेट तो यहाँ पे x की जगह पे x, y की जगह पे 4, y की जगह पे 4 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू -7. So what is the case? This implies 4 उस तरफ जाके माइनस का हो गया, and this gives you -11. Okay, now let us try to draw the graph. So here in this graph, the scales are different. So what I'll do, I'll draw my line. Wait. So in this graph, as you know, what we do, हम लोग अपनी लाइन ड्रा करते हैं. So because most of the values are of minus, so I'm drawing the line here. So suppose I'm drawing line here. Right? It was quite thick. इतने thick नहीं होने चाहिए. And suppose I'm taking y-axis here. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So suppose I'm taking y-axis here. Okay. Right. These are the arrows we have to draw. I hope you also draw the arrows. Here we write on x. Here we write on x dash.
here we write on y, here we write on y dash, here we write on 0, and this is 1 2, like here it is 5, right, here it is 2 4 6, right, it's thicker. Here suppose this is -1 -2, this is -3 -4 -5, like that. And it is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, okay, -7. This is -7. Now what is the table? Let us see the table. Table says so. What is the table? Table is this. Last value we have not written. For y is equal to 4, y is equal to 4, it was -11. For y is equal to 4, it was -11. Clear? For y is equal to 4, it was -11. So this is the table. 0 -7 -7 0 4 -11. What is the table? This is the table. Suppose हमने बनाया हुआ कहीं पे यहाँ पे x y, so 0 -7 -7 0, and for y x is equal to 4, x was -11. This was the table now. Y equal to 4, x was -11. This was the reading. We won't be able to plot here. ये जो -11 है ये बहुत बड़ा हो जाएगा और हम इसको नहीं प्लॉट कर पाएंगे। तो हम कोई और वैल्यू, बेटा सर बोलने की जगह पे अपना पॉइंट बोलो ना। सर y is 11. y is 11 नहीं -11 है। -11 है ना, तो -11 वैल्यू हम नहीं रख पाएंगे, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम कोई और वैल्यू निकालने की कोशिश करने लगे हैं। देखो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन इज x + y = -7। तो क्या इक्वेशन है? x + y = -7। तो हम एक काम करते हैं कि हम फॉर y की वैल्यू रख लेते हैं। फॉर y = लेट अस टेक इट -4। y की वैल्यू -4 रख लेते हैं, ठीक है। वी गेट, इस तरह से लिखना होता है, वी गेट, वी व्हाट गेट, x y की जगह पे -4 = -7. This implies -4 becomes +4 on that side. When we take or we are adding 4 on both sides, so -4 becomes +4 on that side, right? So then now it is equal to -3. So one more value we are having in the table is -3 for y is equal to -4. This value, this is -3. So for y is equal to -4, we are having another value. For y is equal to -4, we are having another value. Y is equal to -4, we are having another value -3. Now this we will be able to plot. I think this we will be able to plot. This was 0, this was 0, right? So now let us try to plot. अब हम इनको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। So first point is 0. First point is 0 -7. 0 0 -1 -2 -3 -4 -5 है ना, -6 -7. Here is the point. तो हम एक छोटा सा पॉइंट लगाते हैं और उसको एनसर्कल करते हैं। ये भी नहीं आ रहा कुछ बच्चों को। एक चीज सीखने में 15 दिन लगा रहे हैं, 5वीं क्लास का बच्चा इतनी सी चीज सीखने में 15 मिनट भी नहीं लगाएगा। Do not prove yourself dumb like dumb. Okay.
Don't be dumb. Okay, now this was the first point, and let us now name this point. Let it be A, right? Let this point be A, and its coordinates are 0, -7. Now second point. Second point is this: -7, 0, -7, 0. So -7. Where is -7? X का -7 का है -3, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. This is -7, right? Now on y-axis 0 मतलब नहीं जाना है, 0 मतलब नहीं जाना, ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, तो here we stop. तो ये हमारा सेकंड पॉइंट आ गया. Let us name it B. So its coordinates are -7, 0. एक और पॉइंट लगाना है. हमने बात करी थी कि हम इसको नहीं लगा पाएंगे इस पॉइंट को, बिकॉज -11 बहुत बड़ा है तो ग्राफ में आएगा नहीं. तो हमने एक और पॉइंट ले लिया था, ये वाला -3, -4. सो नाउ लेट अस प्लॉट दिस पॉइंट. -1, -2, -3, राइट? पहुंच गए -3. नाउ -4. -4 मतलब नीचे को जाना है. -1, -2, -3, -4. देखिए अब हम यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट लगाना होता है, डॉट हल्का सा, फिर उसको एनसर्कल कर देना होता है. Then we encircle this. Done. Now we shall draw the line joining these. Right? We shall draw the line joining these. And the line should have the arrows also. तो हो सकता है मेरी लाइन थिक बने, बट आपको पतली लाइन करनी आती है बेटा. So now we are going to draw the line joining this. These 3 points. The line should pass through these points. I'll try again. Yes, now it is okay. Line you can draw as long as possible. So this is the line, and then finally we have to write down the equation of the line on it. So what is the equation of line? The equation of line was, what was the equation of line, beta? Do you remember? Does anybody remember that? The equation of line was x plus y is equal to -7. So here somewhere we can write the equation of line. X plus y is equal to -7. तो इसमें व्हाट इज द इशू? ऐसे वाला एक क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में था, कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ कर रहा था, कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ कर रहा था. सिंपल. अगर आपने काम नहीं करना है तो आप आगे से आगे जड़ बुद्धि होते जाओगे, बुद्धू होते जाओगे. मींस यू विल ग्रो डम if you are not working along. I'm there for you. You can ask me anything, anytime. But if you have decided that you won't work, there's no solution for that. Okay, now I'm going to take another question. Okay. Suppose we are to draw a line 3x minus 4y is equal to 5. Suppose we have to draw this line 3x minus 4y is equal to 5. What will I do? Here I will try to find the 3x minus 4y is equal to 5. So what will I do? Here I'll try to find the value of x or y. Right? I'll try to find the value of x or y. x और y की वैल्यू इस या तो x की निकाल लूंगा या y की निकाल लूंगा. जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है, अगर मेरे पास होता है ना x minus 4y,
इज इक्वल टू 5, तो मैं x की वैल्यू निकालता, x सीधे सीधे बन जाता x इज इक्वल टू 5 प्लस 4y। कितना आसान बन जाता है ना, तब मैं x की ही वैल्यू निकालता। अगर मेरे पास होता 3x, अगर मेरे पास होता 3x माइनस वाई ओनली, y के साथ कुछ नहीं लगा, y अकेला है, y इज कोएफिशिएंट इज 1, तो मैं y की वैल्यू निकालता माइनस, तो फिर ये सीधे सीधे हो जाता ये y इज इक्वल टू 3x माइनस 5। कितना आसान बन जाती y की वैल्यू, बहुत आसान बन जाती है, जैसे कि आपने सीखा हो, जैसे मैंने पहले कहा है, राइट? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? आई रिपीट, अगर मेरे पास होता x माइनस 7y इज इक्वल टू 8, तो मैं सीधे सीधे x की वैल्यू निकालता, आ जाती ना सीधी सीधी x प्लस 8 प्लस 7y। अगर मेरे पास ऐसे होता x प्लस सॉरी 4x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो मैं सीधे सीधे y की वैल्यू निकालता, 9 इज इक्वल टू 4x, होती ना। अब इस क्वेश्चन में the coefficient is 3, coefficient of y is 4, तो फिर सोचना पड़ेगा कि y की वैल्यू निकालना है Excuse या me, फिर sir. मर्जी हो। Sir, your voice is not clear. Excuse me, sir. Yes, Your voice is not clear. okay, now is it okay now? Is it okay now? Yes, Yes, sir. sir. All right, तो जैसे कि हमने समझा कि now we can find the value of x या y whatever, there is no issue. Suppose let us try to find the value of x, तो कैसे पता करेंगे? 3x is equal to, बाद में इस क्वेश्चन को पूरा कॉपी करके आप लिखेंगे, फिर देन आप अपने क्वेश्चन ट्राई करोगे। 5 minus 4y becomes plus 4y. Now this 3 becomes of division this side. So now we have found the value of x. ठीक है, here we have found the value of x. You could find the value of y also. एक माइनस साइन भी है बीच में, उसका भी देखना पड़ता है। Okay, now we shall start putting the values of y. थोड़ा बड़े बच्चे की तरह सोचना पड़ता है, 9th क्लास में पढ़ते हुए बच्चे की तरह सोचना पड़ता है, 6th क्लास में पढ़ते हुए बच्चे की तरह भी सोच सकते हो, ठीक है? दूसरी तीसरी क्लास के बच्चे की तरह नहीं सोच सकते आप। What I am trying to say कि मुझे y की वैल्यू ऐसी रखनी है बेटा, देखो y की वैल्यू मुझे ऐसी रखनी है कि सब कुछ करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए, कट जाए। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा, देखो अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूंगा तो 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, तो 5 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 5 तो 3 से कटता नहीं, तो y की वैल्यू 0 रखने का फायदा नहीं। y की वैल्यू 1 रखने का फायदा है, क्यों? देखो फॉर y इज इक्वल टू 1 कॉमा x इज इक्वल टू, ऐसे लिखना है आपने, बिल्कुल ऐसे लिखना है जैसे मैंने अभी भी लिखा। फॉर ऐसे, दिस इंप्लाइज के नीचे फॉर है, y इज इक्वल टू 1 है, कॉमा है, फिर x इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू है, फिर 5 प्लस 4 इंटू वाई की जगह पे हमने 1 रखा है। इसको सामने सॉल्व करते चलेंगे हम, 5 4 1 जा 4 अपॉन 3, 5 प्लस 4 9 अपॉन 3, ये तो कट गया, इक्वल टू 3। यानी जब हमने y 1 रखा तो हाउ मच इज x, x हैज कम आउट टू बी 3। तो हमें ऐसे सोचना है, और नीचे बेटा 3 है तो वैल्यूज भी अब जैसे 1 रखी है तो अगली 4 आनी चाहिए या 7 आनी चाहिए,
3 के डिफरेंस पे। तो मैं y इक्वल टू 4 ले लेता हूँ, क्योंकि नीचे 3 है तो मल्टीपल ऑफ 3 विल कम अप टू 3। 3 के बाद ही 3 के मल्टीपल्स आएंगे। तो ये 2 पे भी नहीं कटेगा, 2 पे भी नहीं कटेगा, 3 पे नहीं कटेगा, 4 पे कट जाएगा। तो y इज इक्वल टू 4। समझो मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमने y अब 2 भी नहीं लिया, 3 भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो वो जो बनेगा वो 3 से नहीं कटेगा। अगर यहाँ मैं y की जगह पे 3 रखूंगा तो जो बनेगा वो 3 से नहीं कटेगा। ये सोचना पड़ेगा पहले ही। यार रफ वर्क कर लो, जल्दी जल्दी उंगलियों पे फटाफट से कर लेना पड़ता है। अब मैं y की वैल्यू 4 रखूंगा तो कट जाएगा। 4 4 जा 16 प्लस 5 21, 21 3 के टेबल में आता है। तो फॉर y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 इंटू 4 अपॉन 3, है ना। x की जगह पे, y की जगह पे मैंने 4 रखा है, ये 4 राइट, ये 4 रखा है मैंने y की जगह पे, राइट। ओके, सो 4 4 जा 16, 16 प्लस 5 21 अपॉन 3, दिस गिव्स यू 7। यानी जब मैंने y 4 रखा then the value of x is 7। अब एक माइनस की वैल्यू भी रख लेनी चाहिए। तो 1 के डिफरेंस पे माइनस 1 हमने पहले वैल्यू रखी थी, तो इससे 3 कम कौन सी वैल्यू होगी? इससे 3 कम कौन सी वैल्यू होगी? ये 1 है, ये 1 है। इससे 3 कम कौन सी होगी? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, -2। तो -2 रखना पड़ेगा। आप इतना नहीं सोच सकते, आपका दिमाग इतना नहीं चल पाता है, तो आप रख के देख सकते हो रफ वर्क में, ठीक है। आप रफ वर्क में रख के देख सकते हो। नहीं कटेगा तो छोड़ दिया, कट जाएगा तो रख लिया। और नहीं कटने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक वैल्यू वो भी निकाल के दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम y की वैल्यू रख रहे हैं -2। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि वो कट जाएगा, हमें पता है। 4 प्लस 4 इंटू वाई, ये लिखो, y की वैल्यू मैंने रख दी। I have placed the value of y as -2. Now 5 plus 4 to the 8, 5 minus 8 over 3। 5 minus 8 होता है -3 over 3, कट के बन गया -1। तो यानी y की वैल्यू जब मैंने -2 रखी तो आती है -1। अभी मैं ऐसे बताता हूँ आपको कि मान लो आपने कोई वैल्यू ऐसी रख ली जो कटता ही नहीं, रख ली कोई, सपोज करो आपने y की वैल्यू 2 रख ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रख ली तो रख ली। तो क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 5 प्लस 4 टू जा 8, 4 टू जा 8 ओवर 3, मतलब 13.3। तो इसके पॉइंट बना लो बस 1 डेसिमल प्लेस तक। जैसे क्या बनेगा? 4 3 जा 12, 12 कैरी 1, 3 3 3। तो इसको जब हमने राउंड ऑफ किया तो 4.3 आ गया। यानी y की वैल्यू अगर हम 2 रख लेते तो ये आ जाता 4.3। हाँ, हम पता कर सकते हैं 4.3 ग्राफ के ऊपर कहाँ पे है, तो ज्यादा नहीं सोचना, कोई भी वैल्यू भी रख सकते हो आप। थोड़ा सा गलती होने का आसार होते हैं, इसलिए मैं कह रहा था। तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज 3 1। लेट अस नो प्लॉट। Let us now plot it. Does anybody know how to delete the page? Nobody knows. So first point is 3 1, 3 1, right? So first point was 3 1. Okay. So rather than do that, I can insert a picture again, right? Right. So let us take it. Okay. Okay. So first point is, what is the first point, beta? First point is 3 1. This is the first point, 3 1.
So let us now plot this point. 3 1 3 1. So this is 3, this is 1. ये है छोटा सा डॉट लगाया और उसको हमने एनसर्कल कर दिया and let us name this point as A 3 1. Second point is, what is the second point? Second point is, oh, where are we? Second point is 7 4. What is the second point? 7 4. So let us draw the second point. 7 4. 7. What was the point? I also forgot. 7 4. This is the point. 7 4. So yes, this is 7. This is 7, and here it is 4. So here we reached. I repeat. This is 7, and this is 4. Here we reach, and we encircle this. इसका नाम रख लो B 7 4. Now comes the third point. Third point was -1 -2. This is the third point. Yes, students, this is the third point, right? -1 -2. So let us draw this. -1 -2. This is -1, and this is अब नीचे को जाना है -2. यहाँ पहुंच गए. Okay, so this is the point. आखिरी वाला point ये आया और इसका भी नाम रख लो C, और this becomes -1 and -2. -1 -2. अच्छा, वो चौथा भी ड्रॉ कर लेते हैं जो हमने चौथा पॉइंट लगाया था. चौथा पॉइंट था ये 4.3 and 2. रिमेंबर 4.3 and 2. 4.3. तो देखो ध्यान से, अब देखना है आपको. ये 3 है. Look at my graph carefully. ये 4 है. This is 4. और 4 के बाद हमने 3 डिविजन्स लेनी है. 1 2 3. ये है 4.3. This is 4.3. 4.3 आ गया. कितने पे आया? जब हमने y2 लिया हुआ था. What was the point? y2 है. देखिए y2 है. y2 है 4.3 और y है 2. तो हमने इसके ऊपर जाना, ऊपर को 1 2. ये बन गया हमारा पॉइंट. चौथा पॉइंट जो है वो ये बन गया. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. 4.3 के बाद हम ऊपर को है. दिस इज द फोर्थ पॉइंट. ये भी लाइन में आ गया. नाउ वी शुड ड्रॉ द लाइन, राइट? सो लेट अस ड्रॉ द लाइन. मेरी लाइन जरा मोटी आ रही है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट. आपने लाइन बिल्कुल पतली लगानी है. मेरा टूल में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है. सो नाउ वी शुड ड्रॉ द लाइन. इन सब पॉइंट्स के बीच में से निकलनी चाहिए. पेंसिल शार्प होनी चाहिए, राइट? और यू कैन ड्रॉ द लाइन एज लॉन्ग एज पॉसिबल. This is the line. And then finally we have to write the name of the equation. So what was the equation? Does anybody know? Remember, the equation was is 3x minus 4y is equal to 5. 3x minus 4y is equal to 5.